Hello everyone, myself Majla. Now this is second part of class 8th history, chapter number 3, ruling the countryside. And in the second part, we are going to cover all the remaining topics of this chapter. Let's start. See, in previous part, we discussed about the British land revenue systems in India. That was the permanent settlement system, then the Mehelwari system, then Rutwari system, which was also known as Munro system. We discussed all of them in detail. Now let's look at the a very important next topic is about indigo. So here we will see why the demand for Indian indigo increased and what kind of the methods Britishers adopted in order to increase the indigo cultivation in India, and what were the problems associated with, and then the Blue Rebellion. That was about the rebellion against the indigo plantation that was started in Bengal. We will analyze in detail. In previous parts, we have seen that Battle of Plassey took place in 1757, Battle of Buxar in 1764, then Diwani right of Bihar, Bengal, Odisha was given to East India Company by the Mughal ruler in 1765, and through that Diwani right, this East India Company got enormous power to collect revenue in the Bengal, this BBO region, Bihar, Bengal, Odisha region. Fine. And through that they raised a lot of revenue. काफ़ी ज़्यादा उन्होंने revenue collect किया. But slowly and gradually they realized कि that India में वो वाले crops भी produce कर सकते हैं, which were actually in great demand in Europe and also in Britain especially. फाइन. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारे कल्टिवेटर्स थे, फार्मर्स थे, उन्हें फोर्स किया था ब्रिटिशर्स ने टू प्रोड्यूस ऑल दोज क्रॉप्स व्हाट दे रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, they produced farmers in Bengal to produce jute, tea plantation in Assam region, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, then rice in Madras province. Okay, तो इन सारे regions में farmers को फोर्स करते थे कि दैट कि वो सारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें जो उनके लिए रिक्वायर्ड था. फाइन. नाउ अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज अबाउट द इंडिगो. They also forced some farmers in India, especially in Bengal and then Bihar, that was basically to produce indigo plant. Okay, now let's see what is that about indigo plant, what what the Britishers got through that indigo plantation. Now, first of all, let's understand why the demand for Indian indigo. Indigo is basically nothing but it's a plant through which this natural blue color is extracted. Fine. तो इंडियन इंडिगो का बहुत ज़्यादा डिमांड था. फ्रॉम हिस्ट्री वी लुक एट फ्रॉम 13th century itself. और इंडिगो जो प्लांट होता है दैट इज एक्चुअली ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन. जस्ट सी हियर, यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 6th अबाउट द टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, देन द फ्रिजिड जोन. यहाँ पर देखो, ओवर हियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पर्टिकुलर लाइन से लेकर ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, दिस प्लेस वी कॉल इट ट्रॉपिकल जोन और वी कॉल इट टॉरिड जोन. यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है. ओके, और ये वाला जो रीजन जो है ये हो गया आपका टेम्परेट जोन, एंड देन यहाँ पर ओवर हियर वी हैव फ्रिजिड जोन, एंड सेम वे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो. फाइन. तो ट्रॉपिकल जोन में ही ज़्यादातर ग्रो होता है, प्राइमरीली यहीं पर ही ग्रो करते हैं इंडिगो को. 13th century से ही इंडियन इंडिगो. अच्छा, ओके, बिफोर दैट जस्ट सी हियर वेयर इंडिया कम्स. यहाँ पर अगर हम मैप में एनालाइज करें कि कौन से जोन में इंडिया आता है, तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसिंग थ्रू इंडिया. इंडिया के नियरली 8 स्टेट्स से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये पूरा रीजन जो हमारा ट्रॉपिकल जोन में आता है. और रिमेनिंग हाफ, नॉर्दर्न हाफ, ये वाला देखो, दिस कम्स अंडर इन temperate zone. So India comes under, half of them comes under this temperate zone और half जो है that comes under tropical zone. Okay, so that's why यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडिगो का उस टाइम पे कल्टिवेशन था, बट नाउ इट रिड्यूस अ लॉट बिकॉज सब सिंथेटिक जो ब्लू कलर्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट एट दैट टाइम इट वॉज डन इन अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. स्टिल in some places this kind of cultivation is carried forward even today. Now from 13th century इंडियन इंडिगो का डिमांड बहुत ज़्यादा था, बिकॉज जो जितने भी स्पेशली द डिमांड वॉज हाई इन यूरोप में कौन से कंट्री से, इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन. नाउ वाई? बिकॉज जो वहाँ पर क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स हैं दे रिक्वायर्ड दिस ब्लू कलर टू डाई द क्लोथ्स. फाइन. बट
इंडियन इंडिगो का डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोपियन मार्केट में, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइक लार्ज क्वांटिटी में हम वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते थे. इट वॉज नॉट दैट ईजी ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो स्मॉल क्वांटिटी में ही हम सेल कर पाते थे बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी ऑल्सो. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इन्वॉल्व. और सिंस इफ अ थिंग इज अवेलेबल इन अ वेरी लेस क्वांटिटी बट डिमांड इज हाई, ज़्यादा लोगों को चाहिए, बस क्वांटिटी कम अवेलेबल है, डेफिनेटली द प्राइस विल गो अप. फाइन. अगर कोई मटेरियल मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होगा तो उसका प्राइस कम होगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन. दिस इज व्हाट वी कॉल इट डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट. फाइन. तो यहाँ पर वो काफ़ी हाई रेट में अवेलेबल थी इंडियन इंडिगो. तो जितने भी क्लोथ मैन्युफैक्चरर जो यूरोप में थे, व्हाट दे डिसाइडेड, दे स्टार्टेड लुकिंग टू ऑल्टरनेट थिंग कि इंडियन इंडिगो की जगह हम कोई और यहाँ पर ब्लू कलर लाइक ऑप्शन में लेके चलते बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली. तो दे मेनी यूरोपियन मैन्युफैक्चरर दे started depending on some other plant which actually provides this blue color. That was actually wood, WOAD. Fine. It also produces the blue color, but the blue color produced by wood is dull and pale. Fine. It's very dull blue. Fine. Whereas the Indian indigo, it produces the blue color which is very very rich. You can see the color difference over here. यहाँ पर ये जो blue color, this is the Indian indigo. एंड दिस वन प्रोड्यूस्ड बाय दी वुड प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा डल ब्लू कलर है. फाइन. तो यहाँ पर वो ऑल्टरनेट दूसरा ऑप्शन को तो अडॉप्ट कर रहे थे बट दे विल नॉट गेटिंग बेनिफिट बिकॉज जो पीपल होंगे दे विल लाइक द कलर विच इज़ वेरी रिच. फाइन. और जो स्पेशली बाकी जो मार्केट में जो डिमांड होगा अकॉर्डिंगली दे हैव टू अडॉप्ट. फाइन. बट स्टिल यहाँ पर फिर ये हुआ, जो वुड प्रोड्यूसर्स है, वुड प्लांट को जो प्रोड्यूस करते थे, उन सब ने क्या किया, स्पेशली इन यूरोपियन जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में वेयर दे प्रोड्यूस. फॉर एग्जांपल दिस वन इज ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन. यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांटर्स थे हु प्रोड्यूस दिस वुड प्लांट. बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि दैट ये जो वुड जो है, दिस इज़ एक्चुअली ग्रोन इन टेम्परेट जोन जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है. ओके, सो यहाँ पर मैप में ही देखो, दिस लोकेशन कम्स अंडर टेम्परेट जोन. और ये कलर बहुत डल होता है बट ज़्यादातर जो कंपनीज भी थी वो भी इसको परचेज नहीं करते थे ज़्यादातर, एंड क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इंडिगो अवेलेबल था. तो वॉट दे डन, द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग वुड, दे रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री कि इसके ऊपर दैट वाज बेसिकली इम्पोर्ट ऑफ इंडियन इंडिगो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट कर दो. ठीक है. बट रेस्ट्रिक्शन वॉज डन. लेटर ऑन ये हुआ कि जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स है, दे डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जो रेस्ट्रिक्शन आपने पुट किया इसे रिमूव करो, रिलैक्स करो, बिकॉज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड वी रिक्वायर ओनली दैट इंडिगो जो इंडिया से आ रहा है. ठीक है, बिकॉज दैट कलर इज़ वेरी एनरिच्ड. सो ये सारे लाइक काइंड ऑफ दिस सिचुएशन वॉज प्रिवलेंट एट दैट टाइम. और डिफरेंट कंट्रीज़ में इन लाइक नॉर्दर्न अमेरिका, इन सदर्न अमेरिका, वहाँ पर भी इस इंडियन इंडिगो जो जिस तरीके से हम ग्रो करते थे, वहाँ पर भी लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था इस चीज़ को. और स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपन, यहाँ पर बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इंडियन इंडिगो का डिमांड जो था दैट इंक्रीज्ड अ लॉट. पहले से ही डिमांड था बट बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड इंक्रीज्ड अ लॉट. बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. नाउ देयर आर फ्यू रीजन्स फॉर दैट. सबसे पहले ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज. ओके, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा था वहाँ पर, एंड कॉटन का प्रोडक्शन जो था दैट एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली. कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ. डेफिनेटली वहाँ पर अगर क्लोथ्स को प्रोड्यूस कर दो, यू नो दे रिक्वायर्ड दिस ब्लू कलर टू डाई द क्लोथ्स. तो वहाँ का डिमांड वहाँ पर इंक्रीज हो गया. देन फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका, स्पेशली देखो ब्रिटेन में इंडिया से पहले जो इंडिगो को बेसिकली जो इम्पोर्ट जो करते थे, दैट दे यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम दीज रीजन्स ऑल्सो. यहाँ पर देखो दिस प्लेस इज वेस्ट इंडीज. ओके, एंड फ्रॉम दिस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ से भी इंडिगो जो था वो बेसिकली ब्रिटेन में वो इम्पोर्ट करते थे. फाइन. बट बिकॉज ऑफ सम इंटरनल प्रॉब्लम्स इन दैट प्लेस, जो शॉर्ट यहाँ पर जो सप्लाई जो होती थी टूवर्ड्स ब्रिटेन, दैट डिक्रीज्ड अ लॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट वाज फ्रॉम 1783 से 1789 तक
जो प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो जो था इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड इट फेल अट टू सर्टन लेवल, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया था. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन दैट वॉज द ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, कॉटन प्रोडक्शन expanded dramatically, existing supplies from West Indies and America collapsed for a variety of reasons, and between 1783 to 1789 the production of indigo in the world fell by half because of all these reasons. जो इंडियन इंडिगो का डिमांड जो था दैट इंक्रीज्ड अ लॉट. अब ब्रिटेन में जिन लोगों को इंडिगो की ज़रूरत था बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रीजंस, उसका शॉर्टफॉल जो हुआ या फिर इंडस्ट्रीज़ की वजह से डिमांड इंक्रीज हुआ. नाउ दे वर डेस्परेटली वेटिंग कि अब वो इंडिगो एक न्यू सोर्स, एक न्यू डिफरेंट प्लेस है, कहाँ से वो सप्लाई को सस्टेन करे, इंश्योर कर सके फॉर एवर के लिए. नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग टू इंडिया कि दैट सिंस इंडिया में ब्रिटिशर्स वर एस्टैब्लिश इन देयर स्ट्रॉन्ग पावर, तो नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट हम इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन एक्सपांड क्यों नहीं कर देते, इन आवर कंट्रोल, अपने हमारे खुद के कंट्रोल के साथ उसको एक्सपांड क्यों नहीं करते. फाइन, विद दैट थिंग इन माइंड यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज जो थी, बेसिकली जो स्मॉल इवन जो कंपनीज या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ऑफिशियल्स या ब्रिटिशर्स, उन सब ने क्या किया, यहाँ पर इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन जो है उसको एक्सपैंड करना स्टार्ट किया. पहले से है बट नाउ दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग दिस बिकॉज इंडिगो का डिमांड बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में. तो इफ़ दे एक्सपैंड दिस दे विल बेनिफिट थ्रू कमर्शियली, कि वो ट्रेड करेंगे इसका तो उन्हें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा. दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग दिस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर बाय द लेट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ. एंड सी हियर द कंपैरिजन, 1788 तक ब्रिटेन में इंडिया से जितना वो इंडिगो को इम्पोर्ट करते थे दैट वॉज जस्ट 30%. बाय 1810 now they started importing 95% of indigo from India. तो 1788 में 30% इंडिया से इम्पोर्ट करते थे बट बाय 1810 95%. तो यू कैन सी हियर द डिफरेंस कि कितना ज़्यादा उन्होंने ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर दिया. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब इंडिगो जो उन्होंने इंक्रीज़ किया, हाउ दे इंक्रीज दैट, हाउ दे एक्सपैंडेड, what kind of methods they adopted. Second question, let's see, there are two methods which they adopted to increase this indigo cultivation. One was niche and second one royalty system. Let's see each one of them in detail, starting with the system of niche cultivation. Now under this niche system, planter produced indigo in lands that he directly controlled, or he either brought the land or rented it from ज़मींदार्स. नाउ बेसिकली जो प्लांटर होगा जो उसके पास लैंड है, जो भी उसने परचेज किया हुआ है या फिर कोई लैंड ज़मींदार से रेंट पे लिया हुआ है, उस पर्टिकुलर लैंड में लेबरर्स को वो हायर करेगा और उसके बाद वहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन होगा. दिस इज डेफिनेशन ऑफ दिस निज कल्टीवेशन सिस्टम. नाउ इस पर्टिकुलर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किया था. सबसे पहले planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. तो यहाँ पर कोई भी अगर प्लांटर है उसके पास ये पर्टिकुलर लैंड है, इफ दिस लैंड इज नॉट फर्टाइल, ओके, इफ देर इज सम प्रॉब्लम विद दैट लैंड, तो डेफिनेटली उसे एरिया अंडर दिस कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो उसे एक्सपैंड करना होगा और लैंड में करना होगा. बिकॉज इंडिगो जो प्लांट है दैट कैन बी ग्रोन कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड. प्रॉब्लम यहाँ ये था कि वो एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रहा था, बिकॉज बहुत ज़्यादातर जो फर्टाइल लैंड जो थी वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग रहते थे, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते थे. एंड अगर कोई प्लांटर उनको वहाँ से वेकेट करता है, रिमूव करता है टू सो दैट कि वो वहाँ पर इंडिगो कल्टिवेशन कर सके, दैट विल एक्चुअली लेड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स. फाइन. एंड वन मोर थिंग, जो प्लांटर्स थे वो ज़्यादातर इंडिगो फैक्ट्री के नियर बाय लोकेशन में ही, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ अ फैक्ट्री के जो नियर बाय लोकेशन है वो वहाँ पर ही बेसिकली जो इंडिगो के लिए लैंड को लीज पे लेते थे एंड देन दे यूज टू डू दिस इंडिगो कल्टिवेशन. और ज़्यादातर ये देखा गया था कि दैट नियर बाय लोकेशन में कहीं ना कहीं फार्मर्स स्टे करते थे, पीजेंट्स, एंड प्लांटर्स ने उनको फोर्सफुली वहाँ से रिमूव कर दिया था एंड दैट लेड टू ऑल्सो कन्फ्लिक्ट. ओके, एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ा इसमें ये था दैट इस पर्टिकुलर निच कल्टीवेशन के सिस्टम में जो भी इंडिगो में ज़्यादा आपको लेबरर्स की ज़रूरत होता है. यू हैव टू, जब प्लांट्स का ग्रोथ हो जाएगा यू हैव टू डू दैट हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स को कटिंग करना होगा एंड देन अगेन नेक्स्ट उसे इंडिगो फैक्ट्री तक आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा. इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग
लाइक डिफ़िकल्ट वर्क, इट्स नॉट दैट ईजी, फाइन. और जो लेबरर्स वहाँ पर काम करते थे, सेम टाइम जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, सेम टाइम पे उन्हें अपने पर्टिकुलर फील्ड में वो राइस का कल्टीवेशन करते थे, तो उसका भी हार्वेस्टिंग करना होता है. तो लेबरर्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द प्लांटर्स फील्ड, दे यूज्ड टू गो टू देयर ओन फील्ड टू डू द राइस कल्टीवेशन. राइस कल्टीवेशन जो होता था, उस राइस का हार्वेस्टिंग के टाइम पे बात कर रही हूँ, तो हार्वेस्टिंग के लिए वो अपने फील्ड में काम करते थे. दिस लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि प्लांटर को लेबर्स का शॉर्टेज फेस करना पड़ा. फाइन. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे रिगार्डिंग दिस निच सिस्टम. नाउ जितने भी हमने इंडिगो प्रोडक्शन किया था उस टाइम पे, नियरली अराउंड 25% was done through this niche cultivation system and remaining through the Rutwari system. Now let's see what was this Rutwari system. Now see, under this Rutwari system, Royalty system, planter will force the Royalty here means farmer, तो farmer को force करेगा to sign an agreement. It's an agreement, or you can say it's a contract between the planter and the Royalty, that the farmer. Okay. और यहाँ पर एग्रीमेंट में क्या होगा, दैट लोन विल बी प्रोवाइडेड, इट्स लाइक लोन विल बी प्रोवाइडेड एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, फाइन, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंडिगो, कि आपको इंडिगो प्रोड्यूस करना होगा एंड वी विल प्रोवाइड सम लोन काइंड ऑफ थिंग एंड एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट. ओके, तो दिस इज एग्रीमेंट. और इन रिटर्न जो फार्मर होगा उसे क्या प्रोड्यूस करना होगा, दैट वाज इंडिगो प्रोड्यूस करना है. नाउ वो इंडिगो जो प्रोड्यूस करना है, दैट शुड बी डन इन हिज फील्ड, एंड इन दैट फील्ड 25% ऑफ जो लैंड होगा, इन दैट लैंड इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट 25% ऑफ लैंड शुड बी फर्टाइल लैंड. मार्क इट वेरी केयरफुली. फाइन. उस पर्टिकुलर फील्ड में उसे इंडिगो प्रोड्यूस करना होगा. फॉर दैट रीजन ही विल गेट अ लोन एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, और जो इंडिगो प्रोड्यूस करना होगा अपने पर्टिकुलर लैंड में, दैट विल बी ऑन द 25% ऑफ लैंड विच इज़ अ बेस्ट सॉइल. बेस्ट सॉइल कौन सा होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में? नॉर्मली फार्मर राइस प्रोड्यूस करते हैं. दैट बेस्ट सॉइल में बेसिकली वो ये करते थे कि वो राइस ही प्रोड्यूस करते हैं. बट दे वर फोर्स टू प्रोड्यूस द इंडिगो. ओके. और इन रिटर्न जब प्रोड्यूस हो जाएगा, फॉर दैट प्रोडक्शन पर्पज़, पूरा प्रोड्यूस करने के लिए जो उसका सीड्स की रिक्वायरमेंट होगा, जो भी अदर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द planter to that particular farmer. And after the production, after the harvesting and all, that farmer has to sell all those things to the planter. Planter को sell करना होगा. और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ कि दैट planters paid very less amount of money for the whatever the amount they produced, and through this way they faced the exploitation. Initially farmers were happy कि उन्हें इंडिगो प्रोड्यूस करना होगा, बट येस दे विल गेट सम लोन एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट. दे वर सैटिस्फाइड, दे वर हैप्पी अबाउट दिस system. But later on they realized that whatever they produced, they were paid very less amount for that. और उसके बाद फिर अगेन ये होगा नेक्स्ट साइकिल, प्लांटर अगेन उनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, अगेन लोन प्रोवाइड होगा, अगेन द प्रोसेस विल कंटिन्यू. सो दिस साइकिल विल कंटिन्यू again and again. And if a farmer is not ready to sign, in that situation what the planter will do, they will force that particular village headman to sign this agreement on behalf of these farmers. Fine. So this was about the royalty system. और यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम ये बेटा, एक और प्रॉब्लम ये है दैट राइस जहाँ पर वो ग्रो करते थे बेस्ट सॉइल में, वहाँ पर उन्हें इंडिगो ग्रो करना होगा. एंड देन जो इंडिगो के प्लांट्स के जो रूट्स होते थे, दे रूट्स जो है दे आर वेरी वेरी डीप रूटेड, और उसके वजह से वो इतने डीप रूटेड होते हैं कि दैट आफ्टर डूइंग द इंडिगो कल्टिवेशन, दैट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड यू कैन नॉट ग्रो राइस. उन राइस के ग्रोथ के लिए कंफर्टेबल नहीं होता वो फील्ड. फाइन. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस royalty system. We discussed about niche and we discussed about royalty system. So we have seen that कि इससे farmers का exploitation हो रहा है, and that then blue rebellion that was against the indigo plantation, indigo के cultivation के against rebellion, protest काफ़ी ज़्यादा strongly start हो गया था. That was in March 1859. Thousands of Royals, बहुत सारे जो farmers जो थे बंगाल में, they refused to grow indigo. Okay, and Royals also refused to pay rents to the planters. Planters rent भी charge करते थे, वो भी उन्होंने refuse कर दिया. And they attacked indigo factories also. And all the women, what they done, whatever the things they got from their kitchen equipment, pots, pan, everything, with all those equipment they used to attack
the officials, the planters, okay, and all those people who still worked for planters, उन सभी को socially boycott करना start कर दिया. That means if I am living in that farmers group and all the farmers are not doing, और मैंने क्या किया, मैंने प्लांटर के लिए कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया. नाउ व्हाट द अदर पीपल विल डू, दे विल बॉयकॉट विथ मी. वो मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मेरे साथ बॉयकॉट कर देंगे सोशली. फाइन, सो दिस वाज डन. और इससे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो रिबेलियन था काफ़ी स्ट्रांगली स्टार्ट हो गया था इवन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लोकेशन. और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये था दैट ये जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्लांटर्स के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे एक्चुअली गॉट द सपोर्ट ऑफ लोकल ज़मींदार्स. जितने भी लोकल ज़मींदार्स थे, दे सपोर्टेड देम एंड दे मोटिवेटेड देम. वाई? बिकॉज दे रियलाइज्ड दैट बिकॉज ऑफ दीज प्लांटर्स, ज़मींदार्स की जो पावर है सोसाइटी में वो काफ़ी डाउन हो रही थी. एंड ज़मींदार्स नेवर वांटेड दिस, सो दे सपोर्टेड दीज फार्मर्स ताकि उनका जो प्लांटर्स का पावर काफ़ी कम हो. ओके, एंड देन village headmen also supported them. Now why? Because we have seen this under the royalty system, village headmen को बहुत ज़्यादा force किया जाता था in order to sign the agreement on behalf of the farmers. Fine, so they face this kind of problem, और इसीलिए village headmen, local ज़मींदार्स का काफ़ी ज़्यादा support था to the farmers in order to protest against the planters. और finally ये हुआ, the rebellion spread a lot in different places. And Britishers realized that they should do some take some action against the kind of protest that was actually going on at that time. और उस टाइम पे ये भी हुआ, the educated people, intellectuals in India, they started writing about the kind of problem faced by the farmers through this indigo cultivation at that time. तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा, जो पढ़े लिखे लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करते थे इसके बारे में, और इसके वजह से भी इस पर्टिकुलर रिबेलियन को काफ़ी ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला फॉर दोज फार्मर्स हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी प्लांटर्स. फाइन, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन सेटअप किया. एंड व्हाट वाज दैट कमीशन? दैट कमीशन वाज कॉल्ड द इंडिगो कमीशन. कुछ ऑफिसर्स बिठा के उन्हें ये बोला कि ओके, यू जस्ट सी what was the problem associated with this indigo cultivation, why these farmers are actually protesting, क्या problems है. तो वो कमीशन के जो मेंबर्स जो थे, they started doing the inquiry of this indigo production, और उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया था. Now what was they were, first one, they said planters जो है वो गलत हैं. Okay, they said that planters basically they are guilty, they done the mistake, and they criticized the planters also. उन्होंने ये कहा कि planters की गलती है, और planters को उन्होंने criticize भी किया. Now why they criticized this indigo commission? Because they said कि ये जो planters है, they actually forced the farmers to sign the agreement to do the indigo cultivation. तो ये तो forced हुआ, it's a forced method, so this is something not good. Fine, and then they said through this इंडिगो कल्टिवेशन, इससे जो फार्मर्स जो बेसिकली इंडिगो प्रोडक्शन कर रहे थे, दे नॉट गॉट एनी प्रॉफिट थ्रू दिस प्रोसेस. एंड देन फर्दर दे सेड जितने भी रॉयट्स ऐसे हैं, बेसिकली जो फार्मर्स है जिन्होंने साइन किया हुआ ये चीज़, दिस रॉयल्टी सिस्टम में जो एग्रीमेंट साइन किया है, द इंडिगो कमीशन सेड यू जस्ट कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी इन फ्यूचर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे यू हैव द राइट टू रिफ्यूज़. अब आप मना कर सकते हो उसे नेक्स्ट कोई अगर आप एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हो. सो दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड बाय द इंडिगो कमीशन. आई होप दिस वन क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ से जाके थोड़ा सा जो प्रोटेस्ट जो था वो कहीं लाइक इट स्टार्टेड सबसाइडिंग, एंड देन जो प्लांटर्स जो थे, नाउ दे स्टार्टेड मूविंग टू सम अदर प्लेस दैट वाज इन बिहार. तो बेसिकली बंगाल से अब वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया टू गो टू बिहार. तो बिहार में जाके उन्होंने वहाँ पर भी अगेन इंडिगो कल्टीवेशन का प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट किया. फाइन, और वो सी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट वाज अराउंड 1917. ओके, महात्मा गांधी ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और उनके सामने बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे. एंड दे सेड दैट महात्मा गांधी जो कहा था कि दैट यू कम टू बिहार, और वहाँ पर कुछ प्लांटर्स के इंडिगो कल्टीवेशन के प्रोसेस थे, किस तरीके से वहाँ पर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यू कैन सी देयर. ओके,
देन महात्मा गांधी वेंट देयर, उन सब महात्मा गांधी और बाकी और जितने भी प्रोमिनेंट जो लीडर्स एसोसिएटेड थे, they saw the kind of exploitation that was carried forward in Bihar against the indigo cultivation. फिर वहाँ से नेक्स्ट रेवोल्यूशन, नेक्स्ट मूवमेंट जो स्टार्ट होता है अगेंस्ट दिस इंडिगो कल्टिवेशन, वो था दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट. ओके, चंपारण मूवमेंट उसके बाद गांधी जी स्टार्ट करते हैं. नाउ सी द लोकेशन ऑफ द चंपारण, यहाँ पर बिहार स्टेट में, दिस इज द चंपारण place location. I hope this one clear to everyone. Now one more thing, by this particular time period after the production when collapsed in Bengal, जो प्लांटर जो थे they faced problem in doing indigo cultivation. उनका डिमांड भी थोड़ा कम हो गया था because that particular time period synthetic जो इंडिगो जो होते हैं that discovery was done. उसका जो प्रोडक्शन जो होता थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में, वो होना स्टार्ट हो गया था. तो उसके वजह से प्लांटर्स को थोड़ा सा लाइक उनका जो भी वो इंडिगो नेचुरली प्रोड्यूस करते थे उसका डिमांड डिक्रीज हुआ था. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई होप दिस वन क्लियर टू एवरीवन. विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.